Hello everyone, welcome back to my YouTube channel As Per Life Science. In today's lecture, we will study about principle, working and instrumentation of this electron microscopy. Okay, we will mainly focus on scanning electron microscope and transmission electron microscope. So let us start with our lecture. So first of all, this is the transmission electron microscope and this is scanning electron microscope. Alright, in transmission electron microscope, the electrons will pass through the specimen. This is a specimen, okay, and electrons will pass through this specimen. And in the case of scanning electron microscope, electrons will scan this upper surface. Alright, as you can all see this is the upper surface of this specimen and it will scan all the surface. It will study the topography of the specimen, whereas in the case of transmission electron microscope, the electrons will pass through the specimen. Alright, and this is the image which formed with the help of transmission electron microscope, and this is the image which is formed by scanning electron microscope. So this is the basic difference between TEM and SEM, that electrons will pass through it and electrons will scan the surface of this specimen. Okay. So this is the just a basic idea of transmission electron microscope and scanning electron microscope. So what exactly the principle of TEM and SEM? Okay. So the design, the structure of transmission electron microscope is almost similar to the light microscope. Okay. See, the almost all the parts of this or arrangement of the transmission electron microscope is similar to the light microscope. Okay. So there is the lens, then specimen holder, objective lens, all these are arranged similar only. So this is the diagram for instrumentation of this transmission electron microscope, which you have to draw this in your examination. Okay. And the another one is scanning electron microscope. So scanning electron microscope is similar to the confocal microscope. Okay. So they both show a almost similar structure and instrumentation for scanning electron microscope and confocal scanning microscope. These both will scan the surface of the specimen. So both have a similar arrangement. Okay. So again, this diagram is also very important for your examination point of view. Okay. So the electron microscopes are high vacuum system, as we have seen in earlier lectures. Then in electron microscope, there should be a complete vacuum. Okay, if there is any particle which is present inside this, the electrons will collide to this particle and it will get scattered and it will not form a resolved image or a sharp image. This due to this reason, what we have to do, we have to form a total vacuum inside our this electron microscope. Okay, inside this body there should be a total vacuum. थोड़ा सा भी एयर पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, टोटल वैक्यूम होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा एंड हमें शार्प इमेज नहीं मिलेगा. ओके, सो ये जो बॉडी है इसमें कितना वैक्यूम होना चाहिए? द वैक्यूम ऑफ 10⁻⁷ एंड 10⁻⁻10 मेगाबार. ओके, दिस इज द बार इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रॉन वैक्यूम. सॉरी, बार इज द यूनिट फॉर वैक्यूम. जैसे प्रेशर का यूनिट बार होता है, वैसे ही वैक्यूम भी हम बार में मेजर करते हैं. ओके, सो 10⁻⁷ to 10⁻⁻10 megabar is necessary to prevent the oxidation and burning of the heated filament. Okay, see, हम इलेक्ट्रॉन सोर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट द मेजर इलेक्ट्रॉन सोर्स विच वी यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द टंगस्टन फिलामेंट. Okay, so tungsten filament gets heated up to 2700 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये इसका ऑक्सीडेशन या फिर बर्निंग हो सकता है. टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन और बर्निंग, व्हाट विल डू, वी विल फॉर्म अ वैक्यूम. ओके, सो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, ओके, सो सपोज हियर इज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स, सो देयर शुड बी अ 10⁻⁻⁷ to 10⁻⁻10 megabar vacuum should be there. Okay, the column and the area of the specimen are evacuated steadily to a vacuum of 10⁻⁵ to 10⁻⁷ megabar. ठीक है, सपोज दिस इज योर स्पेसिमेन होल्डर. कि यहाँ पे आपका स्पेसिमेन है. So at this specimen the vacuum should be 10⁻⁻⁵ to 10⁻⁻7 megabar. Okay.
See here, vacuum should be little bit high because we have to prevent this oxidation of our tungsten filament. Okay, but here there is a specimen holder is present and specimen is also present. Okay, so obviously specimen will get damaged with this high amount of vacuum, so we will little bit decrease the pressure of this vacuum. ठीक है, सो यहाँ पे 10⁻⁵ to 10⁻⁷ वैक्यूम इज फाइन. ओके, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वैक्यूम होना चाहिए, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम वैक्यूम होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ दिस वैक्यूम. ओके, सो एनी कोलिजन विद अ रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल इन द सिस्टम रिड्यूसेस द रिजोल्यूशन. ठीक है, अगर अंदर कोई भी गैस, एयर, डस्ट कुछ भी प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, रिजोल्यूशन कम हो जाएगा. एंड परफॉर्मेंस बाय द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल्स होगा कुछ भी तो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बम्बार्ड करेगा, कोलिजन होगा एंड ये स्कैटर हो जाएंगे, जिसके वजह से विल नॉट गेट अ शार्प इमेज. सो हमें अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं चाहिए. द वैक्यूम सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ कैस्केड ऑफ अ लो एंड हाई वैक्यूम पम्प्स. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूम पम्प्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो जो पम्प्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको सक करके बाहर निकालते हैं. दे क्रिएट अ वैक्यूम इनसाइड. ओके, कौन, वैक्यूम पंप. वैक्यूम पम्प्स विल क्रिएट वैक्यूम इनसाइड. सो यहाँ पे वैक्यूम पम्प्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है, जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैक्यूम क्रिएट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अलग वैक्यूम होगा, यहाँ पे अलग वैक्यूम होगा. ओके, सो दिस इज द internal structure of this electron microscope. So see here IGP is present, IGP, okay, which is also called as ion getter pump. Okay, at this ion getter pump our electron source is present, so therefore there should be 10⁻⁷ to 10⁻⁻10 megabar vacuum should be there. Okay, then below that there is a TMP. Okay, oh sorry, this is also IGP, this is TMP. Okay, so which is also called as turbo molecular pump or oil diffusion pump. Okay, and at this area there should be a little bit low vacuum, 10⁻⁻2 megabar. Okay, here our specimen where the specimen is present, their vacuum should be 10⁻⁵ to 10⁻⁷ megabar. Okay, and below that where the rotary pump is present, the vacuum should be of 10,000 megabar. Okay, which is of atmosphere. So this is the arrangement of vacuum pumps inside this our electron microscope. Okay, here ion getter pump is present, below that turbo molecular pump एंड लास्ट में रोटरी पंप प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये जो पंप्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट का वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं. Alright, so this is the vacuum system for electron microscope and vacuum is very necessary for our electron microscope. Okay, so next one electron source. ठीक है, electron source हम क्या यूज करते हैं, that is also very important topic. Okay, so electron source, let's see electron source. The electrons can either be produced by thermionic emission or in a process called cold field emission. Okay. The latest electron microscope have this method, cold field emission. ठीक है, ये सबसे एडवांस वाला इलेक्ट्रॉन सोर्स है. ओके, कोल्ड फील्ड एमिशन, जिसमें हम टंगस्टन ही वायर यूज करते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग द thermionic emission a very fine tip of tungsten, what we use, tungsten filament. Okay, or LAB6, that is lanthanum hexabromide. Okay, LAB6 is lanthanum hexabromide crystal or a ZRO zinchromium oxide or zinchromium tungstate, CO4 oxide और zinchromium tungstate. ठीक है, which is also called as Schottky emitter, is heated by an electrical current flowing through a electron source enabling the escape of electrons. ठीक है, what we do, see, thermionic emission, obviously this name suggests therm, that means we will heat our electron source. Okay, suppose यहाँ पे कोई भी एक filament present है, what we will do, we will heat this filament
This is also called this is called as thermionic emission. Therm, we are using heat. So in thermionic emission, what material we can use? We can use either tungsten filament, okay, and for tungsten filament, thermionic emission temperature goes up to 2700 degrees Celsius, and at this temperature it will get burn, so that we have to create a high vacuum system over here. Okay. Next, what we can use? Lanthanum, hexa 6 hexabromide, okay, either we can use tungsten filament or we can use lanthanum hexabromide. Next, what we can use? Zinchromium oxide or tungstate, okay, which is also called as Schottky emitter. Okay, so these are some electron source for our electron microscopy. Okay, so ये जो सारे के सारे मटेरियल है, हम इसको हीट करेंगे बिकॉज हम थर्मियोनिक एमिशन स्टडी कर रहे हैं. ओके, जब हम इसको हीट करेंगे तब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे. ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ड्यू टू अवर थर्मल एनर्जी, बिकॉज हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लिविंग द फिलामेंट हैव अ लो एनर्जी. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट हो रहे हैं, ठीक है, सपोज दिस इज फिलामेंट एंड इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इनमें एनर्जी लो होती है. ठीक है, सो ऑब्वियसली हमें लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, हमें तो हाई एनर्जी चाहिए, राइट. सो हम यहाँ पे कैथोड एंड एनोड प्लेस करते हैं. ठीक है, एनोड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, राइट. इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस एनोड. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. सी हियर वी प्लेस अ कैथोड एंड हियर एनोड. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड विच विल इंक्रीज देयर स्पीड. ओके, सी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी कम है, स्पीड कम है, एंड हमें कम एनर्जी नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सो वी विल प्लेस हियर कैथोड एंड एनोड सिस्टम. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स लिविंग द फिलामेंट हैव अ लो एनर्जी. ओके, देयरफॉर नीड टू बी एक्सेलरेटेड, उनका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा टू द डिजायर्ड स्पीड बिफोर एंटरिंग द इलेक्ट्रॉन कॉलम. ओके, अ हाई वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रॉन सोर्स, यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे? कैथोड एंड एनोड प्लेट इज अप्लाइड लीडिंग टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा, बिकॉज एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा, एंड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर गाइडेड एंड एक्सेलरेटेड. ठीक है, जो कैथोड एनोड, सी जहाँ पे एनोड प्रेजेंट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे. अगर हमने यहाँ पे एनोड रखा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, अगर हमने यहाँ पे एनोड रखा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा. सो वी कैन गाइड अवर इलेक्ट्रॉन टू अ बेटर गाइड अवर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द स्पेसिमेन. सो जहाँ पे आपका स्पेसिमेन है वहाँ पे हम एनोड प्लेस करेंगे, तो एनोड विल गाइड अवर इलेक्ट्रॉन to specimen, and it will also get speed, it will give a acceleration to the electrons, because जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनमें एक प्रॉपर एनर्जी नहीं है, एक प्रॉपर स्पीड नहीं है, तो हमें उसको और स्पीड बढ़ाना है, जिसके लिए हम कैथोड एंड एनोड यहाँ पे प्लेस करेंगे, विच विल क्रिएट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. विल गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो वो तो पहला वाला था थर्मियोनिक एमिशन जो हमने स्टडी किया, जिसमें हम टोटल 3 मटेरियल यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ कोल्ड फील्ड एमिशन विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड एक्चुअली. ठीक है, पहले थर्मियोनिक एमिशन करते थे, बट अभी कोल्ड फील्ड एमिशन करते हैं विच इज़ इफेक्टिव. ओके, द इलेक्ट्रॉन्स कैन एस्केप फ्रॉम द एक्सट्रीमली फाइन टंगस्टन टिप. यहाँ पे भी हम टंगस्टन फिलामेंट ही यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम उसको हीट नहीं करते. ओके, हम टंगस्टन को हीट नहीं करते इन कोल्ड फील्ड एमिशन. थर्मियोनिक में ऑब्वियसली हीट करना पड़ता है. द एडवांटेज ऑफ कोल्ड फील्ड एमिशन सोर्स इज द वेरी हाई यील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव अ लो क्रोमेटिक एबरेशंस. ठीक है, इनमें एबरेशन यानी कि एबनॉर्मेलिटीज कम होता है एंड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. ठीक है, दे हैव अ हाई यील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोल्ड फील्ड एमिशन. थर्मियोनिक एमिशन में भी
इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बट एज कंपेयर टू थर्मियोनिक एमिशन, कोल्ड फील्ड एमिशन में यील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है. देयरफॉर वी प्रीफर कोल्ड फील्ड एमिशन. ओके, सो this is the table. I hope this is visible. Just okay. So material tungsten, thermionic, lab 6 that is lanthanum, hexabromide, Schottky emitter that is zinchromium oxide or zinchromium tungstate, and in cold field emission, see as you can see heating temperature यहाँ पे कम होते जाता है cold field emission में, ठीक है, एंड ब्राइटनेस बढ़ते जाता है. ठीक है, सो दिस इज द टेबल फॉर आवर कंपेरिजन ऑफ मटेरियल्स, कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स, टंगस्टन, लैब 6, स्कॉटकी एमिटर एंड कोल्ड फील्ड एमिशन. ठीक है, सो कोल्ड फील्ड वाला ज़्यादा बेटर है बिकॉज यहाँ पे हमें हीट भी कम करना पड़ता है एंड जो भी हमें इलेक्ट्रॉन का यील्ड मिलता है वो भी ज़्यादा होता है. ओके, so this is the tungsten filament. See, this is the tungsten filament. I hope you can visible this. Okay, this is the tungsten filament. All right, so that was all about the electron source. Now electromagnetic lens. Okay, ये हमने very first lecture में देखा था that in electron microscope we will use electromagnetic lens. In light microscope we use optical lenses, that is objective lens, then eyepiece lens. But in electromagnetic electron microscope we use electromagnetic lens. Okay, so electromagnetic lens consists of a huge bundle of windings of a insulated copper wire and a soft iron cast and a pole piece. ठीक है, हम यहाँ पे एक कॉपर वायर यूज़ करेंगे. ठीक है, कॉपर वायर ऐसे गोल कॉपर वायर होगा एंड बीच में एक आयन प्रेजेंट होगा. ओके, अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय द करंट इन द वाइंडिंग. ठीक है, सी मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस होगा. सी मैं आपको बता देता हूँ, कॉपर वायर में या फिर एनी मटेरियल, इफ वी सप्लाई द इलेक्ट्रॉन, इफ यू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, at that time this copper wire will behave as a magnet. okay, ये इसका magnetic effect of electric current होता है. little bit physics. see, there are two types of effects of electric current. the first one is heating effect of electric current. अगर हमने इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये वायर हीट होगा. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम बहुत जगह पे यूज़ भी करते हैं, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय द करंट इन द वाइंडिंग. सो जो भी हमने कॉपर का वाइंडिंग रखा है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे. एंड मैग्नेटिक फील्ड कब इंड्यूस होगा? जब हम इसमें से करंट पास करेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. The accelerated electrons entering the magnetic field are deviated following the law of charge passing a magnetic field. And ये magnetic field की वजह से electrons deviate होंगे. Okay, the electrons will get deviated due to this magnetic field. अगर strong magnetic field होगा deviation ज़्यादा होगा, and अगर कम magnetic field होगा deviation कम होगा. Okay. So the resultant force is always perpendicular to the plane defined by the direction of the magnetic field. See, फ्लेमिंग्स रूल की वजह से जो भी आपका सी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा है? ऐसा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा है. ओके, एंड इसमें से जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से सपोज यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स है. ओके, इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डायरेक्टली स्पेसिमेन के पास जाएंगे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है एंड इसको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड दे विल बम्बार्ड ऑन दिस स्पेसिमेन, दे विल हिट दैट स्पेसिमेन. ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ठीक है, 90 डिग्री.
टू द प्लेन ऑफ डिफाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सी ये है डायरेक्शन उसका मैग्नेटिक फील्ड का, एंड इसको ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द फोकल विड्थ ऑफ द लेंस इज चेंज। अगर ज़्यादा होगा तो फोकल विड्थ भी ज़्यादा होगा, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो फोकल विड्थ भी कम होगा। ठीक है, डिपेंड करता है हम कौन सा स्पेसिमेन देख रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली दैट वी कैन एडजस्ट अवर मैग्नेटिक फील्ड। द फर्स्ट लेंस सिस्टम इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्ट एज अ कंडेंसर लेंस। सबसे पहला जो लेंस प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो कौन सा होता है? कंडेंसर लेंस। ठीक है, कंडेंसर लेंस आपके विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नीचे कंडेंसर होता है। कंडेंसर का एक्चुअली काम क्या होता है? कंडेंसर ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता है लाइट सोर्स का। ठीक है, अगर सपोज बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट सोर्स से लाइट आ रहा है, तो हम कंडेंसर को एडजस्ट करके वी कैन एडजस्ट अवर लाइट सोर्स। ठीक है, यानी कि कितना लाइट इंटेंसिटी पास हो रहा है फ्रॉम द स्पेसिमेन, दैट वी कैन एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी जो सबसे पहला लेंस होता है दैट इज कंडेंसर लेंस, which bundles the electron and determines the overall brightness, okay, of the beam and guide to the specimen. So कंडेंसर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे इलेक्ट्रॉन सोर्स में से, उनको डिटरमाइन करता है एंड सैंपल के पास ऑन करता है। ठीक है, एंड ये ओवरऑल ब्राइटनेस को भी डिटरमाइन करता है। ठीक है, अगर कंडेंसर हमने वाइड ओपन रखा तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड अगर हमने कंडेंसर को कम किया तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट द स्पेसिमेन एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ प्राइमरी इमेज। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्राइमरी इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड नॉट द कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का एक ही काम होगा, टू कन्वर्ज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू द स्पेसिमेन। ओके, या फिर टू एडजस्ट द ब्राइटनेस। ठीक है, कंडक्टर लेंस का यही काम है, दैट इट विल एडजस्ट द ब्राइटनेस और इट कैन डायरेक्ट और गाइड दिस इलेक्ट्रॉन्स टू द स्पेसिमेन। ओके, वेयर एज प्राइमरी इमेज कौन बनाएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट द स्पेसिमेन एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स द प्राइमरी इमेज। ओके, so focusing of the image is performed with the strength of the magnetic field in the objective lens. So focusing जो होता है image का, that we can adjust with the help of objective lens. The final magnification is determined by the following projective lenses. ठीक है, सबसे पहले था कंडेंसर लेंस जो कि कंडेंस करेगा इलेक्ट्रॉन बीम्स को, सेकेंड था ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि प्राइमरी इमेज बनाएगा, एंड थर्ड इज अ प्रोजेक्टिव लेंस, ओके, जो कि फाइनल मैग्निफिकेशन करेगा। ओके, फाइनल मैग्निफिकेशन कौन करेगा? प्रोजेक्टिव लेंस करेगा। अ सिस्टम ऑफ 2 or 3 lenses विच इज एक्ट इन अ कॉम्बिनेशन एंड प्रोजेक्ट द फाइनल इमेज। ठीक है, जो प्रोजेक्टर होता है वो कैसे करता है? मैग्नीफाई करता है। ठीक है, आपने प्रोजेक्टर देखा होगा मूवी थिएटर में, सो एकदम पॉइंट सोर्स होता है, उसमें से जो निकलता है वो बड़े स्क्रीन पर एक बड़ा हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखता है। सो वैसे ही जो प्रोजेक्टिव लेंसेज रहेंगे वो 2 से 3 लेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड इट विल फॉर्म अ फाइनल इमेज। ठीक है, ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन और अ CCD कैमरा। ओके, CCD कैमरा इज अ चार्ज कपल्ड डिवाइस। ओके, CCD कैमरा इज अ चार्ज कपल्ड डिवाइस। ठीक है, CCD का फुल फॉर्म कैफे कॉफी डे नहीं है, CCD का फुल फॉर्म है चार्ज कपल्ड डिवाइस। ठीक है, जो एक कैमरा की तरह एक्ट करता है एंड फॉर्म्स अ इमेज। ऑलराइट, सो टोटल हमने 3 लेंसेज देखा। सबसे पहला था कंडेंसर लेंस, नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन प्रोजेक्टिव लेंस। प्रोजेक्टिव लेंस फाइनल मैग्निफिकेशन करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस प्राइमरी इमेज बनाएगा, कंडेंसर लेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंडेंस करेगा। ओके, सो द मोस्ट प्रोमिनेंट aberration in electron microscopy is the axial astigmatism. Okay, so this is actually blurring. ठीक है, astigmatism, that is the blurring of the image. Okay, astigmatism actually ह्यूमन के आइज में भी होता है जिसकी वजह से विजन ब्लर होता है। सो यही astigmatism मेन प्रॉब्लम है हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का।
ठीक है, एक्सियल एस्टिग्मेटिज्म, जिसके वजह से इमेज ब्लर होता है. ओके, सो द एस्टिग्मेटिज्म मस्ट बी करेक्टेड रेगुलरली. द करेक्शन इज डन अगेन विद द हेल्प ऑफ करेक्टर कॉइल्स. ठीक है, करेक्टर कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ये एस्टिग्मेटिज्म का जो फिर या फिर जो ब्लरिंग हो रहा है उसको कम करते हैं एंड इमेज को शार्प बनाते हैं. ओके, करेक्टर कॉइल्स. राइट, सो दिस इज द डायग्राम फॉर आवर स्पेसिमेन होल्डर. सी यहाँ पे आपका स्पेसिमेन होल्डर होगा. ओके, यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला कॉपर वायर है एंड बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है. ओके, एंड यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होगा. ये आपका इलेक्ट्रॉन का पैसेज है. ठीक है, सो ऐसे डायग्राम होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पेसिमेन होल्डर्स एंड स्टेजेस. ओके, स्पेसिमेन होल्डर जो स्पेसिमेन को होल्ड करके रखेगा एंड स्टेज जहाँ पे हम अपना स्पेसिमेन रखेंगे. ओके, so in TEM the electron column does not offer a lot of space for the specimen. Okay, in TEM we have studied that the section should be of very thin thickness. ठीक है, almost 70 to 100 नैनोमीटर थिकनेस होना चाहिए स्पेसिमेन का, बिकॉज स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन्स पास होने वाला है. इफ आवर स्पेसिमेन इज थिक इट कैन नॉट पास easily. Electrons cannot get pass easily. So what we have to do, we have to take a very thin section of our specimen with the help of ultra microtome. ठीक है, हमने पहले स्टडी किया. ओके, सो द स्पेसिमेन मस्ट बी वेरी थिन so that the electrons can penetrate the specimen and form an image. ठीक है, बिकॉज उसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो इलेक्ट्रॉन शुड ट्रांसमिट थ्रू दिस स्पेसिमेन. इसके लिए उसका जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होना चाहिए, 70 to 100 नैनोमीटर. इतना ही होता है तो भी प्रॉपर इमेज बनता है. ओके, द एवरेज थिकनेस ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन शुड बी अराउंड 70 नैनोमीटर. ठीक है, 70 to 100 का रेंज चलता है. फॉर अ टाइम विदाउट एन एक्सेलरेशन वोल्टेज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 किलो वोल्ट. इतना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन चाहिए. ठीक है, अगर इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन नहीं होंगे. सो इतना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स का चाहिए, दैट इज 100 किलो वोल्ट. ओके, सो दिस इज द करके दिखाता हूँ. ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिमेन होल्डर. इसी देखो यहाँ पे एक स्पेसिमेन होल्डर है. ठीक है, इसी को यहाँ पे मैग्नीफाई किया है. ठीक है, इसके ऊपर हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं. बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर यानी कि बहुत छोटा होता है, बहुत कम जगह पे, कम जगह होती है. और ये आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गन है. हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आवर स्पेसिमेन होल्डर, जहाँ पे हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं. ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज गोनियोमीटर. सी, गोनियोमीटर. गोनियोमीटर is an instrument which can rotate और which can measure the angle. ठीक है, गोनियोमीटर क्या करता है, एंगल को मेजर करता है या फिर उसे रोटेट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है. सो एक्स वाई जेड आर द प्लेन्स ऑफ आवर स्पेसिमेन. ठीक है, हम स्पेसिमेन को कौन से प्लेन में रख रहे हैं, एक्स वाई जेड आपके ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स लाइक ये होते हैं, एक्सिस होते हैं. तो गोनियोमीटर इस एक्सिस को एडजस्ट कर सकता है एंड स्पेसिमेन का प्लेन चेंज कर सकता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, देन जेड एक्सिस, ये सारे के सारे एक्सिस है. ठीक है, सो इन एक्सिस में एडजस्ट करने का काम करता है गोनियोमीटर. आपको स्पेसिमेन कौन से प्लेन में रखना है, लाइक ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, जैसे भी रखना है, उस एक्सिस को चेंज करने का काम कौन करेगा, गोनियोमीटर करेगा. Okay, goniometer can adjust the plane of an specimen. Okay, so the thin section of the specimen are mounted on a copper grid of 3 nanometer. ठीक है, हम जो भी आपका सेक्शन है थिन सेक्शन, उसको हमें we have to place it on a copper grid. The grids with a specimen are on top are attached in a holder and introduced into a goniometer. ठीक है,
अभी मैंने बोलूँगा गोनियोमीटर के अंदर रखेंगे सो दैट हम उसका प्लेन एडजस्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम थ्रू अ वैक्यूम लॉक. ओके, द गोनियोमीटर is the mechanical setup which enables highly precise and stable control of the specimen holder during the imaging. ठीक है, तो गोनियोमीटर उस स्पेसिमेन होल्डर को होल्ड करेगा. ठीक है, स्पेसिमेन होल्डर अभी हमने देखा लास्ट में कैसे ऐसे होता है स्पेसिमेन होल्डर. तो इस स्पेसिमेन होल्डर को हम यहाँ पे गोनियोमीटर के अंदर प्लेस करेंगे. ओके, एनी ड्रिफ्ट और इंस्टेबिलिटी रिजल्ट्स इन अ अनशार्प इमेज. ठीक है, अगर लाइक स्पेसिमेन अगर थोड़ा भी लाइक टिल्ट हो जाता है या फिर उसका प्लेन चेंज हो जाता है, इसकी वजह से हमें अनशार्प इमेज मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए. वी ऑलवेज वॉन्ट अ शार्प इमेज सो दैट वी विल कीप दैट इनसाइड अवर गोनियोमीटर एंड गोनियोमीटर हमें प्रॉपर प्लेन उसका एडजस्ट करके देगा. ठीक है, एक्चुअली हम ही उससे एडजस्ट कर सकते हैं गोनियोमीटर से, बहुत ईजी होता है. ठीक है, सो द स्पेसिमेन चेम्बर for SEM are large and offer a much more space for the specimen. जैसे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत थिन सेक्शन होता है. ठीक है, दिस नॉट इन द केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप बड़ा स्पेसिमेन भी रख सकते हो. ठीक है, बिकॉज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को करना क्या है, जी स्कैन करना है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि स्पेसिमेन का थिकनेस क्या है. बट ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप में थिकनेस मैटर करता है. ठीक है, एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा बहुत छोटी जगह होती है स्पेसिमेन रखने के लिए. देखो बहुत छोटा है, ये बहुत माइन्यूट होता है. वेयर एज इन द केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो बहुत जगह है. ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिमेन स्टब एंड स्टब होल्डर. ठीक है, सो यहाँ पे आप बड़ा स्पेसिमेन भी रख सकते हो. सो इन रूटीन the scanning electron microscope the specimen can be at least 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर का होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इन डायमीटर एंड 2 सेंटीमीटर थिक. ठीक है, सिंस इट डज नॉट हैव टू परमेबल टू द इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रांसमिट थ्रू दिस स्पेसिमेन. वेयर इज इन द केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका थिकनेस ज़्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज इट जस्ट हैव टू स्कैन द सरफेस. ठीक है, so this is the diagram for specimen stub in the electron microscope. this is the diagram for electron microscope. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि प्राइमरी इमेज बनाएगा. ठीक है, स्पेसिमेन स्टब एंड स्टब होल्डर. यहाँ पे भी हम अपना गोनियोमीटर प्लेस करेंगे टू एडजस्ट द प्लेन. यूजुअली नहीं प्लेस किया तो भी चलता है बिकॉज हम डायरेक्टली से हाथ से ही रखते हैं स्पेसिमेन को. ठीक है, लाइक जो भी हमें एलिमेंट या फिर मेटल रखना है वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं. ठीक है, so the stub holder then it is mounted on a 5-axis stage of the microscope allowing the control movement in x, y and z tilting and rotation. ठीक है, गोनियोमीटर जो कि हम जिसके वजह से उसका हम प्लेन डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कैसे रखना है, टिल्ट रखना है, स्टेबल रखना है, कैसे रखना है. ओके, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर वेरी सेंसिटिव टू द वाइब्रेशन. हमने पहले देखा इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए एक अलग रूम लगता है. ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. The electron column is mounted on a air cushions which absorb the vibration. ठीक है, सो जो भी इलेक्ट्रॉन कॉलम होता है बहुत बड़ा जो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉलम होता है, इसके साइड में क्या होता है, एयर कुशन्स होते हैं. लाइक ये हम डिज़ाइन ही ऐसा करते हैं सो दैट दिस एयर कुशन विल एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशंस. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वाइब्रेशन अंदर गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स का जो वे है उसको डिस्टर्ब करेगा. राइट, वाइब्रेशन भी डिस्टर्ब करेगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी डिस्टर्ब करेगा. सो हम यहाँ पे एयर कुशन रखते हैं विच विल एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रॉपरली होगा. ठीक है, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंपेंसेटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स माउंटेड ऑन द वॉल्स, सीलिंग एंड द फ्लोर्स. ठीक है, जो भी सीलिंग है, वॉल्स है, उस पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाते हैं विच विल कंपेंसेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो ये सब कुछ करना पड़ता है अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सेटअप बनाना है तो. थोड़ा इसके लिए बहुत कॉस्टली होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सारे के सारे लैब्स में नहीं होता. सो द इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन इंटरेक्शन. ठीक है, सपोज ये आपका स्पेसिमेन का एटम है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पेसिमेन के जो भी इंटरेक्शन होते हैं वो भी हम देखेंगे. क्या क्या इंटरेक्शंस हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है,
सो देखो ये है एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन सोर्स में से निकले, ठीक है। याद रखना जो भी इलेक्ट्रॉन सोर्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, ओके। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच केम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन सोर्स डायरेक्टली, ओके। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल गी बैक स्कैटर्ड, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली बैक स्कैटर्ड हो जाएंगे, ओके। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल गेट स्कैटर्ड विच इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। सी इनका जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। These electrons are called as elastically scattered electrons, ठीक है। इनका एंगल 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। इसी बैक स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डेविएट with less than 90 degree, they are called as elastically scattered electron. There are few electrons which are called as inelastically scattered electrons, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, inelastically scattered electrons because they enter inside our atomic shell, ठीक है। ये जो एटम का एक शेल है, ठीक है, ये उसका एटम का न्यूक्लियस है, एंड ये जो एक एटम का शेल है उसके थ्रू पास हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। सी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना एनर्जी है, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना एनर्जी है उससे थोड़ा कम एनर्जी होगा इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। बिकॉज वो क्या हो गए, यहाँ से डेविएट हो गए, सम ऑफ द एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली जो कि बाहर से जाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है, वो अपने कुछ काम के नहीं है बिकॉज वो इसमें से पास ही नहीं हुए, ठीक है। सो मेन क्या है अपना, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एंगल 90 डिग्री से कम होगा, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, एंड इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी एंगल 90 से कम होगा। बट इन सब में, इन तीनों एंगल्स में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स का जो भी एनर्जी है उससे थोड़ा कम एनर्जी होगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कैन बी यूज टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिमेन, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो गया अपने स्पेसिमेन से, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। Depending on the kind of radiation or emitted electrons which are used for detection, different properties of the specimen such as topography, elemental composition can be deduced, ठीक है। कौन से टाइप का कौन सा रेडिएशन है, ठीक है। देन जो भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी कि जो भी उस एटम से बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सारे के सारे हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो वी विल कलेक्ट ऑल दिस emitted electrons to form our image, okay. So in TEM, that is transmission electron microscope, the analysis of the elastically scattered electrons are mainly used for imaging, ठीक है। Just now we have studied that the elastically scattered electron will be formed when it will deviate less than 90 डिग्री, ठीक है। जब 90 डिग्री से कम एंगल होगा तब हम क्या कहेंगे, इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑलराइट। बिकॉज इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट एग्जैक्टली happens, they will transmit through this shell, they will transmit through this atom, okay. And scanning electron microscope में obviously it will only scan. So in scanning electron microscope we will require to study the back scattered electron, right. जो भी इलेक्ट्रॉन्स बैक स्कैटर होते हैं वो हम सेम में स्टडी करेंगे, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बट इन टेम हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए,
इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इन सम केसेस हम इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी स्टडी करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरफियर हुआ है, तो वो भी हमें स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। बट मेन क्या होता है आपका, इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिकॉर्डेड एज वेल विद द इमेजिंग डिवाइस विच इज CCD कैमरा, ठीक है। सो हम जो इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उनको भी कलेक्ट करेंगे, उनका भी स्टडी करेंगे एंड उनका भी इमेज फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ CCD कैमरा, दैट इज चार्ज कपल्ड डिवाइस, ओके। सो एंड दे कंट्रीब्यूट टू द अनशार्पनेस ऑफ द इमेज, ओके। सो इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन दे विल प्रोवाइड द मेन इमेज, ओके। इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत अनशार्पनेस देंगे इमेज को, बट स्टिल हमें वो कंसिडर करने हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक क्लाउड के साथ इंटरफेयर हुए हैं, ठीक है। सो इन SEM मेनली द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, okay, are used for imaging of the biological specimen. See, this is our electron, this is our atom. जो भी बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द लो एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन एस्केप ओनली फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेसिमेन एंड देयरफॉर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिमेन टोपोग्राफी, ठीक है। बिकॉज इनमें एनर्जी कम होता है तो वो कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वो दिस सरफेस से बैक स्कैटर होते हैं, ठीक है। एंड वही हम सेकेंडरी सेकेंडरी बोल रहा हूँ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन्हें डिटेक्ट करते हैं एंड इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन TEM एंड SEM. In TEM we will mainly focus on the elastically scattered electron, and in SEM we will mainly focus on the secondary electron or back scattered electrons, ठीक है। back scattered electrons provides a density of the image, ठीक है। back scattered electrons will provide a density image and information about the elemental composition respectively, okay. So it will provide the density image, back scattered electrons, okay. So this is the diagram for scattering of the electrons, as you all can see. So this is the mainly primary electrons which will evolve from the electron source, then they will interact with specimen. Some electrons will be scattered electrons, some will be secondary electrons, some will be elastically scattered electrons, and some of them will be inelastically scattered electrons. This is the TEM analysis, this is the SEM analysis. In SEM analysis, we will not only focus on the secondary electrons, but we will also focus on the X-rays, Auger electrons, cathode luminescence and backscattered electron. We have to study all these electrons to form our very detailed image, okay. And in the case of TEM analysis, we will mainly focus on inelastically scattered electron and elastically scattered electrons, okay. So the specimen must be treated to provide enough contrasting for imaging. This is done by impregnation of the thin section with heavy metals like uranium and lead, okay. See, what we have to do, we have to form a contrast, ठीक है. When we increase the contrast, we can actually study the high definition image. Like contrast, जब भी आप मोबाइल में contrast बढ़ाते हो तो आपने देखा होगा जो भी like object है, जो भी image है, वो बहुत sharp दिखता है, बहुत clear दिखता है. So this contrasting in electron microscope will be done by this heavy metal which are uranium and lead. ठीक है, ये क्या करते हैं, contrasting बढ़ाते हैं image में. Okay. So हम thin layer of heavy metal apply करते हैं on our specimen to get a contrast and very sharp image. So see, this image, इसमें heavy metal का application नहीं किया है and in this image the heavy metal is applied on our specimen. So देखो कितना contrast image दिख रहा है, that कितना sharp image दिख रहा है. यहाँ पे हम ज़्यादा differentiate नहीं कर सकते, but in this image see हमें एक properly contrast image मिल रहा है because this image is applied with a thin layer of a heavy metal and ये image में हमने कोई thin heavy metal को apply नहीं किया. So
अगर हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट चाहिए, सो वी हैव टू अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ अ हेवी मेटल. ऑलराइट, सो इन सेम the electron beam with a tiny spot is guided pixel by pixel over the surface of the specimen. ठीक है, सपोज दिस इज अवर स्पेसिमेन. तो सेम में हम क्या करते हैं, पहले इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं. ठीक है, ऐसे पिक्सल्स रहते हैं, ऐसे पिक्सल से बनाते हैं. देन हर एक पिक्सल में हम लाइक यहाँ पे देन यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करते हैं पिक्सल टू पिक्सल. ओके, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे सरफेस को स्कैन करते हैं. सी ऑब्वियसली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी हैव टू स्कैन द स्पेसिमेन. सो हम इसमें थोड़ा टाइम लगता है. वी विल स्कैन पिक्सल बाय पिक्सल, वी विल स्कैन ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट. ओके, एट एवरी पिक्सल द बीम स्टेज फॉर अ डिफाइंड टाइम एंड जनरेट्स अ सिग्नल. ठीक है, पहले इस पिक्सल को या फिर इस क्वाड्रेंट को हम लोग स्टडी करेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, देन उसको शिफ्ट करेंगे एंड ये ऐसा होता है. ठीक है, सो वी विल पास दिस इलेक्ट्रॉन बीम एट एवरी पिक्सल फॉर अ डिफाइंड टाइम. इसके लिए सेम में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे. आई होप आपको सब कुछ सारे के सारे टॉपिक समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.